بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے سبسکرائبر اور میرے سننے والوں، مدرسے والے معذرت خواہ ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مسجد کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے معذرت کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے، نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا، نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا۔ علم پھیلانے کی خاطر، اسلام پھیلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا۔ اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ کو لازماً کرنے ہوں گے مکمل۔ سب سے پہلے شرائط نمبر 1 میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکوٰۃ لازم دیں، یعنی زکوٰۃ کا طریقہ، اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو 3 وقت کا کھانا کھلانا، 3 روزے رکھنا، مسجد کی تعمیری میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا، 6 کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے۔ اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے۔ نمبر 2، عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کرو گے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو 9 چندی جمعرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گے۔ ہر عمل میں آپ کو لازماً بتایا جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یا کس تاریخ کو شروع کرنا ہے۔ 9 چندی جمعرات اسلامک مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعرات آتی ہے، وہ 9 چندی جمعرات کہلاتی ہے۔ 9 چندی جمعرات بدھ والی رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی طریقوں کے مطابق۔ اسلامک طریقوں کے مطابق یا 9 چندی جمعرات اگر 3 تاریخوں کے درمیان آتی ہیں تو وہ 9 چندی جمعرات نہیں کہلاتی۔ 9 چندی جمعرات ان 3 تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعرات آئے گی وہ 9 چندی جمعرات آئے گی۔ مثلاً کہ اگر پہلی تاریخ کو 9 چندی جمعرات آتی ہے تو وہ جو 9 چندی جمعرات نہیں مانی جائے گی، اور جو 3 یا 5 یا 7 تاریخوں میں سے جمعرات آتی ہیں وہ 9 چندی جمعرات مانی جائے گی۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے۔ جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں، لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو تو جلالی پرہیز کریں، جس میں جمالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں۔ جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے۔ جلالی جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو کہ جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں۔ پرہیز گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، لہسن، پیاز اور
सिरका, मेवा, फल, हर किस्म का नशा, हम बिस्तरी करना, सर के बाल कटवाना, मोजे वगैरह, बिस्तर यानी किसी गैर के बिस्तर पर सोना, जानवरों की खाल की बनी हुई या उनकी हड्डी से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, जिस्म से छूना, दूध से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, ये सब परहेज जलाली में आता है। इन सब से परहेज किया जाता है। परहेज जमाली अंडा, गोश्त, मछली, लहसुन, प्याज से परहेज करना परहेज जमाली में आता है। आप खा क्या सकते हो? चावल, दालें मसूर और उबले हुए चावल खा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ उबले हुए चावल खा सकते हो। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हो, वो भी उबाल कर खा सकते हो। हल्का सा नमक आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप सालन बनाकर खाना चाहते हो तो जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो और बस नमक डालकर उबली हुई सब्जियां आप खा सकते हो। और जो भी रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हो उसके ऊपर जैतून का तेल लगाकर आप पराठा टाइप बनाकर भी खा सकते हो। ज्यादा जैतून का तेल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये परहेज जलाली और जमाली है। अमल शुरू करने से पहले जिसमें 9 चंदी जुमेरात की पकड़ का कहा गया है वो आप लाजिम करेंगे। अमल मुकम्मल यकीन कामिल के साथ करेंगे। दिल में कोई भी ऐसा शक नहीं आने देंगे कि अमल ठीक है या नहीं, तो इस तरह फिर अमल करने का कोई फायदा नहीं। आप अमल करना छोड़ दें। जब आपका यकीन कामिल पुख्ता नहीं तो अमल करने का कोई फायदा नहीं। मुकम्मल अमल को मजबूती से करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। अमल करते वक्त अगर पहले चिल्ले में कामयाबी ना हो तो कम से कम 3 चिल्ले जरूर करें, इंशाल्लाह दूसरे चिल्ले में या तीसरे चिल्ले में जरूर कामयाब होंगे। अमल में कामयाबी के लिए मुराकबे के तरीके पोस्ट किए गए हैं। मुराकबे के तरीके जरूर सुन लें, उनको नजर में रखकर अमल शुरू करें। अमल की कामयाबी का अनुसार जो है पढ़ाई करने वाले के यकीन पर होता है। जितना मजबूत आपका यकीन होगा इतना ही मजबूत अमल में कामयाबी का इम्कान होगा। हिसार करना लाजिम है, वरना रिजत का खौफ और नुकसान का खतरा होता है। रिजत की वीडियो पोस्ट कर दी गई है। रिजत की दुआएं, रजाले गैब की दुआ और 7 सितारों की दुआ पोस्ट की गई है, उसको भी आप लाजमन पढ़कर अमल शुरू करेंगे। वाजिया रहे मुकलीन की अमल, अमजाद की अमल और परियों के अमल में, जिसमें आपको जिस तरह कहा जाए उस तरह ही आप अमल करेंगे। हिसार के लिए 1 बार सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों कुर्स पढ़कर चाकू या खंजर या चाक या छुरी से आप दायरा खींच लेंगे और उस दायरे को हिसार कहते हैं। ये आपकी हिफाजत का किला है। ये हिफाजत के लिए जरूरी होता है। तस्खीर के मौके पर इसका होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाएं कि हिसार को कभी भी क्रॉस करके ना उठें, यानी कि छलांग लगाकर हिसार से बाहर ना आए, बल्कि छुरी से जहां पर आपने हिसार का एंड किया था वहां पर ज़रब का निशान लगाकर बाहर निकलें। अमल का जिक्र किसी से भी ना करें, वरना अमल में कभी कामयाबी नहीं होगी। अपने सिर्फ और सिर्फ अपने पीर मुर्शिद से या अपने उस्ताद से अमल का जिक्र करें, क्योंकि वो अमल की ऊंच नीच को जानता है। वो आपको अच्छा मशवरा देगा। अमल मुकम्मल राजदारी में करें और उसके बारे में लोगों से कहते ना फिरें। अगर अमल में डर खौफ आए या किसी चीजों का नजूल हो तो समझ लें आप कामयाब हो गए। अगर आपका करीब से करीब दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बहन भाई हो और आपके वालिदैन भी हो, इनसे भी अमल का जिक्र ना करें, वरना आपके हाथ कुछ ना आएगा, अमल जाया हो जाएगा। अमल के दौरान हर किस्म का नशा छोड़ना होगा। वाजिया रहे सिगरेट, पान, सालिया, गुटखा, हेरोइन, चर्स, अफीम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, बियर्स वगैरह आपको छोड़नी होगी। किसी किस्म का जो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सादा पानी आप पी सकते हैं, सिर्फ सादा पानी ही पिएंगे। अमल की इजाजत तमाम शराइत को पूरा कर देने के बाद हर किसी को है। अगर आप किसी को बताते हैं तो अमल का जो नुकसान होगा उसके नुकसान के हकदार आप खुद होंगे। मदरसे वाले आपकी मदद नहीं करेंगे। ये अमल की शराइत हैं। अब अमल की जो मुकम्मल डिटेल है वो सुन लें ताकि आपको अमल के बारे में पता हो।
आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां दुख तकलीफों को ख़त्म कर दे। अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जब मैं आपके साथ अमल पेश करने जा रही हूँ, जैसा कि इससे पहले भी मैंने नादे अली का अमल पेश किया था, नादे अली के मोकलीन का अमल था, आज भी नादे अली के मोकलीन का अमल है। बहुत नया, बहुत ही आला और बहुत ही लाजवाब अमल है। अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी दुआ है कि आप जरूर कामयाब हों। जो मैं अमल आपको बताने जा रही हूँ बहुत लाजवाब है। आपने पढ़ाई क्या करनी है? ला इलाहा लखी आयतुल कुर्सी हजारी, ला इलाहा लखी आयतुल कुर्सी हजारी, आई हजरत अली की सवारी, चलो सवारी करो, हाज़रात को हाजिर करो, खिदमत में हमारी, बेहक के नादे अली, बेहक के, होश से सुन ले, बेहक के नादे अली। एक मरतबा ज़ायमत को दोबारा से आपको सुना दूं, स्क्रीन पर भी चला दी गई है, वहां से भी आप आसानी नोट कर सकते हैं। ला इलाहा लकी आयतुल कुर्सी हजारी, आई हजरत अली की सवारी, चलो सवारी करो, हाजिरात को हाजिर, खिदमत में हमारी। ये जो अज़ाइमत है उर्दू में है, ठीक है, और फिर आगे से जो आएगी बी हक के नादे अली, तो ये लाजमन आपने पढ़ना है, ठीक है। तो अब इसका तरीका आप सुन लें। तरीका इसका ये है कि अरूज माह 9 चंद जुमेरात को बाद नमाज इशा इस अज़ाइमत को रोजाना 812 मरतबा 21 यौम तक पढ़ेंगे, ठीक है। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जरूर पढ़ेंगे। दुरूद इब्राहिम जब आप पढ़ लेंगे तो ये 21 दिन का अमल जब आपका मुकम्मल हो जाएगा तो फिर किसी मिठाई पर या किसी सफेद मिठाई या सफेद चीज पर न्याज दिलाएं, पर न्याज हजरत अली शेर खुदा की दिलाएं, क्योंकि नादे अली का अमल है। जब भी आपको मुकलीन की हाजिरी का नज़ूल हो तो आपने मगरिब से कुछ देर पहले या फिर इशा के टाइम आपने बैठ जाना है, पाक साफ कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर, अतर लगाकर, और दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून पर या हथेली पर या जो है अंडे पर, शीशे पर भी आप यहाँ जो है मुकलीन की हाजिरी कर सकते हैं। काजल की स्याही को लगाकर, जो जादुई स्याही मैंने आपको सिखाई है वही स्याही आप इस्तेमाल करेंगे, और स्याही में निगाह रखकर आपने सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और 28 मरतबा फ़ज़ाइमत पढ़कर आपने दम करना है। तो देखिएगा कुछ देर ही आप दम करेंगे तो फौरन ही आपके हिजाब के पर्दे उठ जाएंगे और मुकलीन की हाजिरी हो जाएगी, जिससे आप सवाल अर्ज करें उसका मुकम्मल और तसल्ली बख्श आपको जवाब मिलेगा। सबसे पहले सलाम करें और उसके बाद उनका हाल अहवाल पूछें। उसके बाद आप जब अपने सवाल जवाब कर लें तो फिर उनका शुक्रिया अदा करें, अदब से सलाम कहकर उनको रुखसत कर दें। बहुत नायाब अमल है, लाजमन कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि अमल की तासीर बढ़े तो ये अमल आप किसी बच्चे के ऊपर भी करवा के देखिएगा तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। बच्चे के वक्त से जितने भी आप सवाल जवाब पूछेंगे आपको सही और आला किस्म के ही सवाल जवाब मिलेंगे। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे अमल को, मेरे इल्म की कदर कीजिएगा। जाहिल और बेवकूफ लोगों के हाथों में इल्म को ना जाने दीजिएगा। इजाजत दें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको जारी कर दिया जाए, आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। कम से कम बेल आइकॉन को लाजमन दबा लें। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से